والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المسؤولين سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإخوتي أهل بيتي وغزل اللهم صل على محمد. اسلام محترم سامعین کرام قربان اہل بیت اطہار، میں نے آپ کے سامنے جس آئے کریمہ کا تذکرہ کیا بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. یہ آپ مسلسل ایام اعظم میں سنتے رہتے ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ارشاد رسول اکرم ہے، اے مسلمانوں میں تم میں دو گرا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت اور ایک میری کتاب یعنی قرآن مجید. اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں کے بیچ ایک ایسا ریلیشن ہے، ان دونوں کے بیچ ایک ایسا کنیکشن ہے کہ بغیر قرآن کے اہل بیت سمجھ میں نہیں آ سکتے اور بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتے. رسول نے کہا ہے مسلمانوں میں تم میں دو گرا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت اور ایک میری کتاب یعنی قرآن مجید. اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گمراہ ہے تو یا تو اس نے قرآن کو چھوڑا ہوگا یا تو اس نے اہل بیت کو چھوڑا ہوگا. یہ سلوات اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا نے قرآن کے ساتھ کیا کیا اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. تو جو قرآن کے ساتھ کیا وہی اہل بیت کے ساتھ کیا. ادھر قرآن پہ دھول ڈالی گئی، ادھر ان پہ پردے ڈالے گئے. ادھر قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا، ادھر ان کو نیزے پہ بلند کیا گیا. جب قرآن نیزے پہ بلند ہوا تو یہ اہل بیت سے جدا نہ ہوا، اور جب اہل بیت نیزے پہ بلند ہوئے تو ان کی صبح سے قرآن جدا نہ ہوا. یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے ریلیشنز ختم ہو جاتے ہیں، اس کا آنکھوں سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ذہن سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا قرآن سے رشتہ ختم نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مرنے کے بعد قرآن سے رشتہ ختم نہ ہو اس کا زندگی میں قرآن سے رشتہ کیا ختم ہوگا. تو جتنے فضائل قرآن کے ہیں اتنے ہی فضائل اہل بیت کے ہیں، جتنے مصیبتیں قرآن کی ہیں اتنی ہی مصیبتیں اہل بیت کی ہیں. ادھر اس پہ دھول ڈالی گئی ادھر ان پہ پردے ڈالے گئے. ادھر اس کو چھوڑا گیا ادھر ان کو نظر انداز کیا گیا. ادھر اس سے بھی دشمنی ہے ادھر ان سے بھی دشمنی ہے. ادھر ان کو قرآن کو جلایا گیا ادھر ان کے خیمے جلائے گئے. ایک سلوات بھیجیے محمد قرآن تو یہ کہہ کے گزر گیا کہ شہیدان راہ خدا کبھی مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں. خدا کی راہ میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. لیکن اب ثبوت کون پیش کرے، دلیل کون پیش کرے؟ تو حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ ہم زندہ رہ کے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ شہیدان راہ خدا کبھی مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں. خدا کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا تھا وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا. سلوات بھیجیے گا محمد عزیزان محترم. اہل بیت ہم سے کب راضی ہوں گے؟ اہل بیت ہم سے تب راضی ہوں گے جب ہم نمازیں پڑھیں گے. اہل بیت ہم سے تب راضی ہوں گے جب ہم روزے رکھیں گے. اہل بیت ہم سے تب راضی ہوں گے جب ہم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھیں گے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، آپ و دانہ نہیں چھینتا، رزق نہیں چھینتا، آپ و دانہ بند نہیں کرتا. سورج سے نہیں کہتا تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں پڑنی چاہیے، چاند سے نہیں کہتا تیری روشنی اس کے آنگن میں نہیں آنی چاہیے، بارش سے نہیں کہتا تیری بوندیں اس کے گھر میں نہیں گرنی چاہیے. بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. سجدوں کی توفیق چھن گئی تو
समझो अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह राज़ी नहीं है। और अगर सजदों की तौफीक नसीब हो जाए तो समझ लो अल्लाह राज़ी है, नाराज़ है। सलवात भेजिए मोहम्मद। देखिए दौलत तो अल्लाह उससे भी देता है जिससे राज़ी है, उसे भी देता है कि जिससे नहीं राज़ी है। दौलत अल्लाह मुशरिकीन को भी देता है, कुफ़ार को भी देता है। उसे भी देगा कि जिससे राज़ी होगा, उसे भी देगा कि जिससे नहीं राज़ी होगा। लेकिन सजदों की तौफीक सिर्फ उसे देगा कि जिससे राज़ी होगा। तो हमें चाहिए कि हम नमाज को पाबंदी वक्त के साथ पढ़ें। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन बेनमाजी उस सफ़ में खड़ा होगा कि जिस सफ़ में नमरूद खड़ा होगा, जिस सफ़ में शद्दाद खड़ा होगा, जिस सफ़ में हारून खड़ा होगा, जिस सफ़ में फ़िरौन खड़ा होगा। क्या हम में से कोई भी गवारा करेगा कि हम उस सफ़ में खड़े कर दिए जाएं जिस सफ़ में दुश्मनाने रसूल खड़े हों? क्या हम में से कोई भी गवारा करेगा कि हम उस सफ़ में खड़े कर दिए जाएं कि जिस सफ़ में दुश्मनाने अहले बैत खड़े हों? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हम में से कोई भी गवारा नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि हम पाबंदी वक्त के साथ नमाज को अदा करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं बहुत ही माज़रत के साथ अपने बुज़ुर्गों से, अपने भाइयों से बात कहना चाहता हूँ कि आजकल का माशरा ये है, आजकल का नेचर ये है इंसान का कि बाप ने बेटे को कुछ कह दिया तो अब इनसे बात नहीं करेंगे, भाई ने भाई को कुछ कह दिया तो अब उनसे बोलेंगे नहीं, उन्होंने सलाम नहीं किया तो उनसे बात नहीं करेंगे, उन्होंने बात नहीं की थी तो अब उनके घर नहीं जाएंगे, वो हमारे घर मजलिसों में नहीं आए तो हम उनके घर मजलिसों में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, अब देखिए एक सवाल दीजिए तो हमारे घर मजलिसों में नहीं आए तो हम उनके घर मजलिसों में नहीं जाएंगे, उन्होंने हमको सलाम नहीं किया तो हम उनसे बातें नहीं करेंगे। मौला कायनात फरमाते हैं भूल जाने की आदत डालो वरना माशरे में अकेले रह जाओगे, भूल जाने की आदत डालो वरना दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम ये तो सोच सकते हो कि उन्होंने सलाम नहीं किया उनसे बात नहीं करेंगे, उन्होंने मुंह टेढ़ा किया तो उनसे बोलेंगे नहीं, वो हमारे घर नहीं आए हम उनके घर नहीं जाएंगे। लेकिन ये दुनिया का मिजाज है कि इंसान को अल्लाह ने दो चीज़ों के लिए बनाया है, एक खुशी के लिए बनाया है और एक गम के लिए बनाया है। गम उस वक्त बढ़ जाता है कि जब कुछ अजीज़ और क़रीब गले मिल जाते हैं, और खुशी उस वक्त मल्टीप्लाई हो जाती है जब कुछ रिश्तेदार आपस में खड़े हो जाते हैं। तो इंसान का दिल दुश्मनी के लिए नहीं बनाया गया, इंसान का दिल मोहब्बत के लिए बनाया गया है। एक सवाब के जीवन अल्लाह ने शाबान एक ऐसा महीना रखा है जिसमें कोई भी शहादत की तारीख नहीं है, और मुहर्रम एक ऐसा महीना रखा है कि जिसमें कोई भी विलादत की तारीख नहीं है। मैं पूछूंगा परवरदिगारा शाबान में कोई भी शहादत की तारीख नहीं है और मुहर्रम में कोई भी विलादत की तारीख नहीं है, तो अजब नहीं कि परवरदिगार कहेगा शाबान में इमाम हुसैन की विलादत हुई है इसलिए उसमें कोई शहादत नहीं है, और मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत हुई है इसलिए कोई विलादत नहीं है। तो मैं पूछूंगा परवरदिगार कहना क्या चाहता है? तो अजब नहीं, परवरदिगार कहेगा कि जहाँ मेरे हुसैन का गम है वहाँ कोई खुशी नहीं है, और जहाँ मेरे हुसैन की खुशी है वहाँ कोई गम नहीं है। एक सलवात इंसान को चाहिए एक छोटा सा वाक़या, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि वो स्कूल में आए और स्कूल में कुछ 30-35 बच्चे थे, तो उन्होंने सारे बच्चों को आके चॉकलेट दिया। उन्होंने सारे बच्चों को चॉकलेट दिया और देने के बाद कहा कि हम अभी चॉकलेट दे रहे हैं सुबह और शाम में हम आएंगे सबसे चॉकलेट वापस ले लेंगे। अब देखिए इनका मकसद चॉकलेट देना नहीं है, इनका मकसद ये है कि इंसान की कंट्रोलिंग पावर अच्छी है कि नहीं है, इंसान का इरादा मजबूत है कि नहीं है, इंसान का नफ्स अच्छा है कि नहीं है। इन्होंने कहा कि हम सबको चॉकलेट दे रहे हैं और हम शाम में आएंगे और सबसे चॉकलेट वापस लेंगे। जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई होगी उनको शाम में 10 चॉकलेट और एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। अब देखिए हर इंसान की कमज़ोरी चॉकलेट नहीं होती ना, वो जो बच्चे हैं उनकी कमज़ोरी चॉकलेट होगी, लेकिन किसी इंसान की कमज़ोरी दौलत होती है, किसी इंसान की कमज़ोरी शोहरत होती है, किसी इंसान की कमज़ोरी हराम ग़िज़ा होती है, किसी इंसान की कमज़ोरी दौलत होती है, किसी इंसान की कमज़ोरी हराम ग़िज़ा होती है। तो वो कहते हैं कि अब हम शाम में आए और शाम में आने के बाद हमने देखा कि सारे बच्चों से हमने चॉकलेट मांगी थी, जो चॉकलेट सुबह दिया था मैंने वो सारी चॉकलेट वापस करो। कुछ 30-35 बच्चे थे, सब ने चॉकलेट वापस नहीं किया।
اس میں कुछ 22-23 बच्चों ने चॉकलेट तो खा ली और कुछ 7-8 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चॉकलेट को नहीं खाया। तो कहते हैं कि जिन बच्चों ने चॉकलेट खा लिया था, जिनका इरादा मजबूत नहीं था, जिनका कंट्रोलिंग पावर अच्छा नहीं था, उन्होंने चॉकलेट खा लिया, और जिनका इरादा मजबूत था, जिनका कंट्रोलिंग पावर अच्छा था, उन्होंने चॉकलेट नहीं खाया। तो इसका मतलब ये है, वो कहते हैं कि हमने कुछ साल और इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद देखा कि वो आगे करते क्या हैं। तो कहते हैं जिन बच्चों ने चॉकलेट खा लिया था, जिनका इरादा मजबूत नहीं था, जिनका कंट्रोलिंग पावर मजबूत नहीं था, उनमें से कोई प्यून बना, कोई स्वीपर बना, इसका मतलब सबको छोटी छोटी जॉब मिली। और जिनका इरादा मजबूत था, जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई, जिनका कंट्रोलिंग पावर अच्छा था, उनमें से कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई साइंटिस्ट बना, कोई प्रोफेसर बना। एक सलवात के जीवन मोहम्मद वाले। तो कहते हैं कि कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई साइंटिस्ट बना, कोई प्रोफेसर बना। तो इंसान को चाहिए कि अपने इरादे को मजबूत रखे। कुरान जो बयान करता है रवायत के लोग मैदान छोड़ के भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे? क्योंकि उनका इरादा मजबूत नहीं था। इरादा मजबूत होता तो कभी मैदान छोड़ के भागते ना। इरादा कमज़ोर था, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गए। हम अपनी कमज़ोरियों को मजबूत तब कर सकते हैं जब हमारा इरादा मजबूत होगा। कभी कहता है गौ सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, कभी कहता है गौ सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अज़ीम भी वो है, आला भी वो है, और इसके बीच का जो अमल है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इसी यकीन को बढ़ाने के लिए कभी कहता है कि इसी यकीन को बढ़ाने के लिए इब्राहीम की तरह आग में भी गिर जाओगे तो आग तुम्हारे लिए दिलो गुलजार बना देगा। इसी यकीन को बढ़ाने के लिए मूसा की तरह दरिया में भी चले जाओगे तो दरिया को तुम्हारे लिए ज़मीन में बदल देगा। कुछ लोग या रसूल अल्लाह, जनाब ईसा पानी पे चलते हैं। कहा अभी तो पानी पे चल रहे हैं, अगर यकीन ज़्यादा होता तो हवाओं में परवास करते। सवाल दीजिए पर मोहम्मद बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम कर दिया। आज 2 मुहर्रम हो गए। हम पूरे साल इंतज़ार करते रहते हैं कि मुहर्रम आएगा, हुसैन के नाम पे अश्क बहाएंगे। मुहर्रम आएगा, हुसैन के नाम पे हिस्सा बांटेंगे। मुहर्रम आएगा, हुसैन के नाम पे मजलिसें करेंगे। मुहर्रम आएगा, हुसैन के नाम पे सबीयत लगाएंगे। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इस साल अपने वतन में मुहर्रम करना नसीब हुआ। आप जाके उन लोगों से पूछिए कि जो अपने घर नहीं आ पाए हैं। आप जाके उन लोगों से पूछिए कि जो परदेश में हैं। हर साल मुहर्रम करने आते थे, यही सोच के आते थे कि अभी बकरीद है, अभी नहीं जाएंगे, अभी ईद है, अभी नहीं जाएंगे, जब मुहर्रम आएगा तब जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब वो मुहर्रम में नहीं आ पाते तो आप उनके दिल की कैफियत सोचिए, उनके दिल की क्या कैफियत होती होगी। जब भी आती है किसी घर से सदा मातम की, जब भी आती है किसी घर से सदा मातम की, उसी मंजिल पे ठहर जाने को जी चाहता है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज 2 मुहर्रम हो गए। बात कहती है कि 2 मुहर्रम से तुमने ये सोचना शुरू कर दिया था और तू ज़हरा के लाल को कत्ल करेगा, और तू ज़हरा के लाल पे खंजर चलाएगा, और तू ज़हरा के लाल पे तीर चलाएगा। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक वो सोचता रहा। इसी असना में एक शख्स आता है, कहता है अगर मुझसे कोई पूछता कि यहाँ सबसे बहादुर कौन है, यहाँ सबसे ताकतवर कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता। और आखिर बात क्या है, बात तो बताओ। वो कहता है, वो उसको अपने साथ लेके आता है। अब इतना आगे बढ़ता है कि घर की आवाज़ आना बंद हो जाती है, उधर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। कहता है आवाज़ें सुन रही हूँ, अलतश अलतश, ये जो आवाज़ें आ रही हैं, इन आवाज़ों का जिम्मेदार जानती हूँ कौन है? इन आवाज़ों का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हुसैन खुद कहता है कि 10 मुहर्रम की सुबह जैसे ही नमूदार हुई, रवायत कहती है 3 लोग उनके साथ और आगे बढ़े। उनका बेटा था, उनका भाई था, उनका बेटा था, उनका भाई था और उनका गुलाम था। अब जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने कहा बेटा मेरे हाथों को रस्सियों से बांध दो, मेरी आंखों पे पट्टियां बांध दो, क्योंकि ये वही आंखें हैं जिसने हुसैन को नजरें उठा के देखा था। ये वही आंखें हैं जिसने हुसैन से नजरें मिलाई थी। अब ये आंखें हुसैन को देख नहीं पाएंगे। अब उनके बेटे ने जैसे ही पट्टी बांधी, थोड़ा सा आगे बढ़ना था, उनका बेटा कहता है अल्लाहु अकबर। वो कहता है क्या बात है? उनका बेटा कहता है खुद इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहा है। इतना कहना था, थोड़ा सा और आगे बढ़े, उनका बेटा कहता है अल्लाहु अकबर। वो कहता है अब क्या हुआ? उनका बेटा कहता है खुद लश्कर अलमदार अब्बास दिलावर हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ना था, उनका बेटा कहता है अल्लाहु अकबर। वो कहता है अब क्या हुआ? कहा खुद ज़हरा का लाल हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहा है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम कर दिया।
اور کہتا ہے جیسے امام حسین میرے پاس آئے مجھے بتا دینا. اب جیسے امام حسین حر کے پاس آئے اور امام حسین کے قدموں میں گر گیا, کہا مولا کیا حر کی خطا بھی معاف ہو جائے گی, مولا کیا حر کو بھی معافی مل جائے گی. اتنا کہنا تھا, امام حسین نے حر کو سینے سے لگا لیا, کہا حر بے شک اللہ معاف کر دے گا, حر اللہ کو صدقے دل سے معافی مانگو, اللہ معاف کر دے گا. اب اتنا کہنا تھا, امام حسین نے حر کو بیٹوں کو جنگ کی اجازت دی. اتنا بڑا لشکر تھا, حر کا بیٹا کب تک لڑتا, تھوڑی دیر لڑا, لڑنے کے بعد گھوڑے سے جیسے ہی گرا, کہا بابا مدد کو آئیے. اب جیسے امام حسین نے سنا, امام حسین نے کہا حر کیا غضب کرتے ہو, جوان کی لاش میں کہیں کوڑھا بات جاتا ہے, میں کہوں گا مولا کربلا کا میدان ہوگا جب علی اکبر نے آواز دی ہوگی اور کوئی مدد کے لیے آیا نہیں ہوگا. واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب اس مختصر سے عزا کو قبول فرما, ہم سب کی جان مال جلالوں کی حفاظت فرما, جناب زینب روزی کی تعمیر ہو جائے. سب سے عظیم دعا یہ ہے ہمارے امام کی ضرور تعمیر فرما اور ہم سب کو جگہ انصار کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع